صلوات بھیجیے مومنین. صلی اللہ مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید زین العابدین موسوی، کنیز سبتین، سیدہ رضیہ رضوی بنت تراب علی، کاظم علی ابن وزیر علی اور عمران موسوی ریحان موسوی کے جمی مرحومین مرحومات اور آپ سب کے جمی مرحومات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وقراءة الياسين والمجلس وذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المرحومين سید زین العابدین موسوی، کنیز سبتین، سیدہ رضیہ رضوی، کاظم علی ابن وزیر علی وسائر المرحومین والمرحومات لعائلة المنظورة وجميع الحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وأہل بیتہ الطیبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. صلوات. قابل احترام علامہ الحاج سید فرت حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات و مومنین و مومنات حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں آج کی جو مجلس عزائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ منعقد ہو رہی ہے، عمران موسوی اور ریحان موسوی کی طرف سے ان کے مرحومین کے لیے اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے امتیازات رمضان. رمضان المبارک میں خصوصی امتیازات کل کی جو تقریر تھی اس سے متصل کرتے ہوئے پہلی خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. قد اقبل الیکم شہر اللہ. حضور نے فرمایا اے لوگو تمہاری طرف آ گیا وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرت. برکت لے کر آ گیا، رحمت لے کر آ گیا اور مغفرت لے کر آ گیا. پھر ارشاد فرمایا یہ بھی خصوصیت رمضان ہے کہ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات.
इसके दिनों का मुकाबला 11 महीने के दिन नहीं कर सकते, इसकी रातों का मुकाबला पूरे साल की रातें नहीं कर सकती, और इसके घंटों का मुकाबला बाकी घंटे नहीं कर सकते। वक़द दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ऐ लोगो, खुसूसियत देखिए, इसमें अल्लाह की तरफ से तुम्हें दावत दी जा रही है अल्लाह का मेहमान बनने की। देखिए, उमूमन यही आपने पढ़ा सुना होगा कि मेहमान होता है 3 दिन का। वो बंदों का मेहमान है जिनके खजानों में कमी होती है, जिनमें टॉलरेंस कम होता है, तहम्मुल कम होता है, बर्दाश्त कम होती है, जहमतें नहीं उठा सकते, उनके यहाँ तो मेहमानदारी का उसूल रखा गया 3 दिन। और जिसके खजानों में बरकत ही बरकत है, उसने पूरा महीना अपनी मेजबानी में अपने बंदों को मेहमान रखा। रमजान की खुसूसियत बाकी महीनों में इसलिए नहीं मिलती कि दरअसल भूखा और प्यासा रखना यह हदफ नहीं है। हदफ यह नहीं है कि भूखा प्यासा रखा जाए। अगर यह हदफ होता तो फिर गरीब फकीर लोग तो इस हदफ को वैसे ही पूरा कर रहे थे बगैर नियत के। मकसद बिल्कुल ये नहीं, तो हदफ फिर क्या है? जैसे खुद इरशाद होता है, वज़कुरू बिजूअकुम व अतशकुम जूअ यौमिल क़ियामह व अतश यौमिल क़ियामह। इस भूख और प्यास से, मैदान महशर में लगने वाली भूख और प्यास को याद करो, और उनको भी याद करो कि जिनको परमानेंट कुछ नहीं मिलता। तुम्हें तो चंद घंटे कुछ नहीं मिलता तो घबरा जाते हो, उन गरीबों का भी ख्याल रखो जो हमेशा महरूम में खुराक है। और फिर ये भी असल हदफ ये है कि फरिश्ते बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल नहीं पीते, उनके यहां तौलीद नस्ल वगैरह है ही नहीं। तो 1 महीना अल्लाह ने ऐसा रखा कि जिस इंसान को मैंने फरिश्ते से अफजल बना के पैदा किया था, अपनी थ्योरी के साथ चंद घंटे उसका प्रैक्टिकल भी दिखा दूं कि फरिश्ते से ये इसलिए अफजल है कि वो ख्वाहिश न रख के नहीं खाता, ख्वाहिश न रख के नहीं पीता, ये ख्वाहिश भी रखता है नहीं खा रहा, ख्वाहिश भी रखता है नहीं पी रहा। तो ये खुसूसियात शाहरे रमजान है। हमारे यहाँ आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा कार ये था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही था कि इन शबहाए मुक़द्दसा में कसरत से इबादत करते थे, उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते थे, कसरत से कुरान की तिलावत फरमाते थे। जैसे हमारे यहाँ उमूमन मैंने देखा है कि 27-28 को कॉल्स आती हैं कि कुरान शुरू किया था मगर ख़त्म नहीं हो सका। जब किसी ने पूछा कि आइम्मा कितने ख़त्म कुरान करते थे, तो आई ज़रा समाअत कर लीजिए, हमारे हर इमाम ने अपनी ज़िंदगी में हर रमज़ान में 40 ख़त्म कुरान किए। तो जिनके इमाम 40 ख़त्म कुरान करते हो, वो 40 सिपारे गलत फहमी हो गई है, 40 खत्म थे, 40 खत्म करते थे हमारे इमाम, 40 सिपारे कोई नहीं, सिपारे तो हैं ही नहीं, सिपारे तो बंदों ने बनाए। पारा पारा जो किया है कुरान को, तो सिपारे बन गए सी पारे, सी यानी 30 और पारे यानी फाड़े गए। 30 मरतबा इस कुरान को अलग अलग किया गया। अल्लाह की नजर में तो सूरतें हैं, ये बंदों ने सिपारे बनाए हैं। जैसे खुद सजदे अल्लाह की नजर में हैं और रुकू बंदों ने खुद बना लिए हैं। ये जो कुरान में रुकू होते हैं ये बंदों के बनाए हुए हैं। खैर, तो खुसूसियत रमजान में एक बात और जो बहुत जरूरी है, मन हसन फीह खुल्क़हु कान लहू जवाज़न अला सिरात। जो अपने एथिक्स को रमजान में दुरुस्त कर ले, वो बर्क रफ्तारी के साथ
पुले सिरात से गुजर जाएगा। ये तज़किया नफ्स का महीना है, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल या इनसाइट जो आप कहते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन का, तरबियत का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। इसमें तरबियत इस्लामी होती है। इसीलिए कुरान ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, और दूसरी जगह कहा वस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, और मदद तलब करो अल्लाह से सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। अब जाइए जरा तफसीरों में देखिए, इस सब्र से मुराद है रोजा। गौर करें, मदद के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है खालिक व मखलूक के दरमियान, उसमें नमाज सेकेंडरी आ जाती है, रोजा प्राइमरी आ जाता है। जरा गौर फरमाइए, वैसे हमेशा नमाज प्राइमरी है, इसमें क्योंकि रोजा सिर्फ एक्सट्रीम वो मामला है जो अल्लाह का और बंदे का मामला है। नमाज दूसरे देख सकते हैं, रोजे को कोई नहीं देख सकता, वही देख सकता है या ये बंदा जानता है इसने रोजा रखा है या नहीं रखा। एक हदीस कुदसी समाअत फरमा लीजिए, ये आपको काम आएगी। अल्लाह ने आवाज दी अस्सौमु ली व आना अज्जी बेही। ये एक तरीके से हदीस कुदसी नाजिल हुई है, हम तक पहुंची है। रोजा है मेरे लिए और उसकी जजा दूंगा मैं। ये शिया और सुन्नी दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट में ये हदीस कुदसी दर्ज है। हमारे आइम्मा अथहार ने फरमाया कि असल में जुमला यूं है, अस्सौमु ली व आना उज्जा बेही। रोजा है मेरे लिए और इसकी जजा कुछ और हो नहीं सकती, मैं खुद रोजादार का हो जाता हूं। लीजिए, ये अजीब फुरूए दीन में वाहिद अमल है रोजा। किसी और अमल पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं बंदों का हो जाता हूं, रोजे में कहा अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, जजा में मैं खुद बंदे का हो जाता हूं अगर बंदा 12-15 घंटे मेरा हो जाए। तो इस हदीस कुदसी की समाअत के बाद आपको अंदाजा हुआ कि रमजान और रोजा कितना इंपॉर्टेंट है। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया से कूच कर गई तो ये थी जंगल में, ये शहर बदर थे, माँ बेटा जंगल में पत्ते खा रहे थे। पत्ते चुनने गए हुए थे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, वापस आए तो माँ फौत हो चुकी। कबारे इलाहा, क्या मुमकिन है मेरी माँ को एक लम्हे के लिए जिंदा कर दे? आवाज कुदरत आई, ऐसी फरमाइशें तुमने कोई हमेशा तो नहीं करनी। जब दूसरों के लिए मौत को हयात में बदल देते हैं तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारी मां के लिए कौन सी मुश्किल है, हमारे लिए कौन सी मुश्किल? ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मां जिंदा हुई तो पूछा कि अम्मा ये बताएं कि अब तो आपने मकाम बेहिश्त अपना देख लिया होगा ना, तो ये बताइए मकाम बेहिश्त पसंद है या ये पत्ते खाने वाली दुनिया पसंद है? तवज्जो रहे। तो सवाल क्या, जवाब क्या होना चाहिए कि बेहिश्त पसंद है। मगर बीबी मरियम कहती हैं बेटा मुझे ये सख्त दुनिया पसंद है। कहा क्यों? अब तो मकाम जन्नत भी देख लिया। कहा ये ख्वाहिश है कि और जिंदा रहती तो सख्त सर्दी की रातों में नमाज पढ़ती और गर्मी के दिनों में रोजे रखती। तो अल्लाह से मुलाकात का जरिया है नमाज और रोजा। एक मरतबा हजरत सलमान फारसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह हाजिर खिदमत रसूल हुए और कहा या रसूल अल्लाह अखबिरनी वक्ता मौती, आप मुझे मेरी मौत का वक्त बता दें। आपने फरमाया अल इल्मु इंदल्लाह, मगर मैं तुम्हें कराइन बताने के लिए तैयार हूं। कराइन ये है सलमान,
जब मुर्दा तुमसे गुफ्तगू करे तो समझना फरिश्ता मौत आने वाला है। जब सलमान इमाम के अपॉइंटेड गवर्नर थे मदाइन में, और वहीं दफन भी है, हदीस किसा वाले भी वहीं दफन है, दोनों साहबी वहीं पर हैं। तो एक रोज असबग इब्ने नबाता, इनके दोस्त हैं, जैसे आप क्लास फेलो होते हैं, ये इमाम फेलो है, जैसे मैं और आप इमाम फेलो हैं। मैं किसी जगह का हूं, आप किसी जगह के हूं, हमारे अंदर जो मोहब्बत होती है वो इमामत के रिश्ते से होती। तो असबग इब्ने नबाता हाजिर खिदमत हुए, सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं आया। जहन में सोचा कि क्या गवर्नरी का असर तो नहीं। इतने में अंदर से आवाज आई कि असबग अंदर आ जाओ, मैं उठने के काबिल नहीं, अलील हूं, मरीज हूं। जब गए तो देखा बहुत हालत जार है। कहा असबग मुझे अपने कंधे पे सवार करके कब्रिस्तान में ले जाओ, मैं सच्चे नबी की सच्ची पेशीन गोई की तस्दीक करना चाहता। जब गए वहां पर कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्रों वालों हमारा तुम पे सलाम हो। एक कब्र से मुर्दा उठा और उसने कहा वालैकुमुस्सलाम या साहिब वलीयल्लाह, ऐ अली के दोस्त हमारा भी सलाम। जब वो मुर्दा गुफ्तगू करने लगा, समझ गए कि वक्त आखिर तो आ गया, सच्ची पेशीन गोई सच्चे नबी की पूरी हो गई। कहा लगे हाथों कुछ सीख ही लूं, जरा देखें ये सलमान की तड़प है। और हम समझते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, हम तो अल्लामा व फाहमा है, हमें सीखने की क्या जरूरत है, कि सीख ही लूं, जाते हुए भी सीख लूं। कहा कि जिस अल्लाह ने तुम्हें बोलने की इजाजत दी है, उस अल्लाह की इजाजत से यह बता कि कब्ज़ रूह कैसे हुई। कहा ऐसे सलमान जैसे पांव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक किसी ने कैंची से काट दिया। कहा सलमान ने कहा कि ऐ मैयत, ऐ मुर्दा, तुझे खबर नहीं थी कि इसका कोई इलाज भी है? कहा हां खबर तो लगी, मगर कब्र में आकर, कब्र में आके पता चला कि 3 काम ऐसे हैं कि अगर कोई जिंदगी में करता हो तो उसकी रूह ऐसे कब्ज होगी जैसे सख्त गर्मी के मौसम में कोई ठंडा शरबत पी रहा। पर्चा आउट हो गया, दूसरे लफ्जों में पर्चा आउट हो गया, समझ गया ना? जी हाँ, पर्चा आउट हो गया, कब्ज़ रूह का पर्चा आउट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरी रमजान में कब्ज़ रूह का पर्चा आउट हो रहा है कि रूह की कब्ज में तकलीफ नहीं होगी। सलमान के जरिए और उस मैयत के जरिए हम तक ये बात पहुंच गई। कौन कौन से काम? सलमान ने पूछा। कहा 3 काम है। नंबर 1 रोजे रखना, नंबर 2 नमाजें पढ़ना, नंबर 3 छुपा कर राह खुदा में सदका देना। तो आपने मुलाहजा फरमाया रोजा और नमाज कब्ज़ रूह की सख्ती से बचा रहे हैं, सदका सख्ती मौत से बचा रहा है, सकरात मौत से बचा रहा है। आखिरी बात करें और आपसे इजाजत लें। हमारे यहां का जो आजकल रोजा है ये बड़ा सिंपल रोजा है। 2 हिजरी में फर्ज हुआ था, ये कुतुब अलैकुम सियाम जो कल की मजलिस में अर्ज किया था। उस वक्त का रोजा बड़ा सख्त था। एक तो मैट्रिमोनियल जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उस वक्त रात में भी हराम थी, तभी तो हुक्म देना पड़ा उहिल्ल लकुम लैलतस्सियाम अर्रफसु इला निसाइकुम। दूसरी सख्ती ये थी कि अगर कोई मगरिब के बाद 1 लम्हे के लिए भी सो जाता था, बिल्कुल वो जिससे वुजू टूट जाता है 1 लम्हा सोना, गाफिल सोना जिसे आप कहते हैं, तो उसके बाद अगले रोज तक कुछ खा पी नहीं सकता था। अगले रोज तक उसका रोजा हो जाता था 48 घंटे का। यह सख्ती थी उस जमाने। 2 हिजरी से लेकर 5 हिजरी तक मुसलमान जो रोजे रखते रहे वो ऐसे ही रखते रहे।
5 हिजरी में जंग खंदक हुई और ये मालूम है आपको कि सलमान फारसी के मशवरे से खंदक खोदी गई। देखिए इंसान अपने आप को कितना इवेलुएट कर लेता है। गबरजादा का बेटा इस लेवल पे पहुंच जाता है कि रहमतुल लिल आलमीन व अमरुहुम शूरा का मिसदाक उसे करार दे रहा। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कन्वर्टेड जब इस मकाम पे पहुंच सकता है तो जो बाई बर्थ मौला अली के मानने वाले हैं, मौला अली की औलाद हैं, वो इस मकाम पे कैसे नहीं पहुंच सकते? वो तो कन्वर्टेड है। स्ट्रगल तो कीजिए। वहां लैसा लिल इंसान है, इंसान के लिए वो ही कुछ है इल्ला मा सा, जो वो कोशिश करेगा। स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, मुसलसल जहद मुसलसल करनी है अपने गोल को अचीव करने तक। ये इम्तिहान होते हैं तो कैसे बच्चे जागते हैं, रात में नींदें उनकी हराम हो जाती हैं। मौला फरमाते हैं ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये दारुल इम्तिहान है। हमारे मानने वालों तुम हर रोज पर्चे में हो, इम्तिहान के पर्चे में हो। तो सलमान फारसी के मशवरे से जो खंदक खोदी जा रही थी उसमें एक सहाबी थे खवात इब्ने जुबैर अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, बुजुर्ग सहाबी हैं, बूढ़े, पेट पे पत्थर बांधे हुए, कमर खमीदा थी, कमर पे पटका बांधा हुआ, मगर इताअत पैगंबर में वो भी खंदक खोद रहे हैं। ये हमारे यहाँ तो जवान आजकल वॉलंटियर बनने में पसोपेश करते हैं कि भाई ये पानी दे देना, तो उनको तकलीफ हो जाती है बाज को, या मसलन ये झाड़ू दे देना इमाम बारगाह का या मस्जिद का। हालांकि याद रखिए अल्लाह का एक मुआहिदा है बंदों के साथ, अगर तुम अपने स्टेटस का ख्याल न रखते हुए मेरे घर से झाड़ू दोगे, मैं अपने स्टेटस का ख्याल न रखते हुए तुम्हारी कब्र को साफ कर दूंगा। वो मुजाहिद देखें, और हमारे बाज़ औक़ात लेजी लोग, खासतौर पे जवानों को चाहिए बढ़ चढ़ के ये वॉलंटियर बने। और आजकल तो ये महीना अल्लाह का महीना है, इसकी जजा तो अल्लाह ही देगा। अभी अर्ज किया है अल्लाह जजा में खुद चला जाता है। तभी तो हुजूर ने फरमाया इत्तकुन्नार वलो बितमरतिन वत्तकुन्नार वलो बिशुरबत माइन। एक टुकड़ा लेकर खजूर का और एक घूंट पानी का लेकर अपने भाई बहन अजीज मोमिन को दो, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर आतिश जहन्नम को रमजान में हराम कर देगा। रमजान की खुसूसियात देखें आप। जान जोखिम में डालनी पड़ेगी बाकी महीनों में, यहां बिल्कुल आसान तरीके से सोना इबादत, सांस तस्बीह, एक कुरान खत्म, एक आयत खत्म कुरान के बराबर, एक फरीजे की अदायगी 70 फरीजों के बराबर। तो खवात इब्ने जुबैर अंसारी गिर पड़े बेहोश होकर। रमजान में ये खंदक खोदी जा रही थी, तो गिर पड़े। जब गिर पड़े तो हुजूर ने कहा कि खैरियत क्यों गिरे? जब होश में आए तो उन्होंने खुद बताया कि रोजे से थे, रात को अहलिया इफ्तार बना रही थी कि आंख लग गई। हुक्म शरीयत यह है कि अब तो खा नहीं सकते, तो जाहिर है बगैर सहरी के भी रोजा हो गया, इफ्तारी के बगैर भी रोजा हो गया। बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बर्दाश्त नहीं कर सके। वहां पर अल्लाह की जात ने, अल्लाह जो फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ने ये नहीं ठान रखा कि तुम्हें सख्तियों में मुब्तला करे, अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करना चाहता है। वहां पर आकर हुक्म बदल गया कि अब डॉन से लेकर वही जो खैते अबियत से लेके खैते अस्वद तक, यानी मगरिब शरई तक अगर खाने पीने से अवॉइड कर लो और मुफ्तरात से, तो तुम्हारा रोजा सही हो जाएगा। जरा गौर फरमाएं, ये बात आखिर में समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी के सहाबी का अल्लाह ने कितना भरम रखा है। एक सहाबी की तकलीफ की वजह से सारी उम्मत को तकलीफ से बचा दिया। तो ये आसान रोजा है, वो बड़ा सख्त रोजा था। अल्लाह करीम तौफीक दे मुझे और आपको कि हम रोजे रख सकें, इसमें नमाजें पढ़ सकें और जो अपने मरहूमीन हैं उनको याद कर सकें, खैर के जरिए
और नमाज शब की पाबंदी करें। इसी तरीके से आमाल खैर की जो फितरा व ज़कात है, खुम्स व सदक़ात है, मदारिस व मराकिज़ की इमदाद की, उलमा के एहतराम की, एक दूसरे के एहतराम की अल्लाह हमें तौफीक मरहमत फरमाए। और एक दूसरे को इफ्तार करा के, इफ्तार स्पॉन्सर करके अपने ऊपर जहन्नम को हमेशा के लिए हराम करार दे और वॉलंटियर बनकर अल्लाह के महीने में अल्लाह के घर को साफ करे, ताकि अल्लाह हमारी कब्रों को साफ फरमा दे। भूख और प्यास हमेशा ही सख्त होती है, और जब मादर हुसैन का वक्त आखिर आया तो बीबी ने मौला अली से कहा, या अबुल हसन इजलिस मई अलल अर्ज वस्मा वसीयती, मौला जरा मिट्टी पर मेरे साथ बैठ जाए और मेरी वसीयतों को सुने। तो चंद वसीयतें की, उनमें एक वसीयत अजीब थी, मौला मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, ऐसे ना हो कि आप मेरी तदफीन में इतने मसरूफ हो जाएं, मेरा हुसैन प्यासा रह जाए। माँ वैसे ही बड़ी अजीम होती है, और फिर जो हुसैन की माँ हो, क्या ख्याल है हुसैन की माँ को। मेरे अजीजों, हुसैन की माँ के जो दुख थे इतने ज्यादा थे कि अगर दिनों पे आते तो दिन स्याह रातों में बदल जाते। यही वजह है कि जो दरवाजा सैयदा के शिकम अतर पे गिरा था, मौरखीन लिखते हैं कि उसमें एक लोहे की मेख थी, वो मेख शिकम सैयदा में पैवस्त हो गई, उस मेख ने मोहसिन को शहीद किया। रिवायत है कि जब इमाम जमाना आएंगे और काबा के पास खड़े होंगे तो दाएं तरफ से एक बीबी आएंगी, उन्होंने अपने हाथ में एक लाश उठाई होगी, बाएं तरफ से एक और बीबी आएंगी, उन्होंने भी एक लाश उठाई होगी। जो दाएं तरफ से आएंगी वो होंगी फातिमा बिनते असद, और उन्होंने उठाया हुआ होगा मोहसिन का जनाजा। और जो बाएं तरफ से आए होगी वो होगी फातिमा बिनते मोहम्मद, और उन्होंने उठाया हुआ होगा असगर का जनाजा। अल्लाह अकबर, जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। बस तवील जहमत न दूं मेरे अजीजों, मादर हुसैन के मसाइब आज भी अजीब है। हमारे उस्ताद थे आयतुल्लाह विजदानी, उन्होंने ऐलान किया कि मुझे सैयदा ख्वाब में मिली, और उन्होंने कहा कि विजदानी, जब शब जुमा में तुम्हारे शागिर्दों ने मजालिस कम कर दी हैं मेरे हुसैन की, तो मेरे पहलू के जख्म के दर्द में इजाफा हो गया। हम भी उस वक्त, मैंने भी मजलिस पढ़ी, सुनी भी, मजलिसें की, तो अगली शब जुमा के बाद ख्वाब में आई बीबी और कहा, हाथ अपना पहलू से उठाया हुआ था। आयतुल्लाह ने बताया, मैंने पूछा बीबी आपके जख्म का इलाज हो गया? कहा मेरे हुसैन के हक में बहाए गए आंसू मेरे जख्म का मरहम बन जाते। जरा कदर करना अपनी आंसुओं की तहारत की। ये बीबी वो है जो मरकज़े तहारत है, आयत ततहीर का मिस्दाक है। जरा समझे, जो फिजिकल डिफेक्ट्स है वो इस बीबी में नहीं है, कायनात की बीबियों से अफजल है। इल्लत गाई रिसालत है ये बीबी, आयत ततहीर की मिस्दाक बीबी। उस बीबी के लिए आपकी आंखें कितनी पाक हो गई कि जो आयत ततहीर का मरकज है उसके पहलू पर आपके आंसू पहुंचते हैं तो शिफा होती है। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला इल्तिमा से दुआ, ये है हुसैन की मां, मादर हुसैन। और एक रिवायत है बड़ी अजीब के हुसैन इब्न अली शब आशूर में अपने खैमों से जल्दी जल्दी निकले। एक सहाबी कहता है मैं नाफे बिन हिलाल पीछे पीछे चला। इमाम ने कहा कि तुम ज्यादा करीब ना आना, जब मैं निशेब में जाऊं तो तुम बाहर खड़े हो जाना। नाफे कहते हैं कि जब नशेब में इमाम गए तो मैंने अजब मंजर देखा। कहते जाते थे अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। अल्लाह अकबर। जब बाहर निकले तो मैंने पूछा कि ये कौन थी जिसे अम्मा अम्मा कह रहे थे?
کنافے میری ماں آئی تھی کہ میرے مقتل کو صاف کرے تاکہ جب میں گھوڑے سے گروں تو میرے زخموں کو تکلیف نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب سید زین العابدین کنیز سبتین سیدہ رضیہ رضوی کاظم علی ابن وزیر علی اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما۔ بار الہ جو آنکھیں فاطمہ و حسین کے لیے برسی ہیں ان کو اپنے غموں میں نہ رلا۔ بار الہ حاضرین مؤمنین مؤمنات کے خاتمہ علی ایمان کا سرٹیفکیٹ رمضان میں عطا فرما۔ جہنم کو ہم سب پہ حرام کرا، جنت کو ہم سب پہ لازم کرا۔ ہماری اولاد کی تربیت کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ آج کے بانیان عمران موسوی ریحان موسوی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کل جو گزر گیا ہے اس کے بانی افطار کے اور مجلس کے ہمارے خورشید عابدی صاحب اور ان کے بھائیوں کی توفیقات، ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ عمران و ریحان کے اہل خانہ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما۔ جتنے میرے بھائی بہن دور نزدیک سے حسینیہ میں تشریف لا رہے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ کر، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو توفیق خیر مرحمت فرما، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا کر، ختم قرآن کی توفیق دے، تہجد کی نماز کی توفیق دے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے، حسینیہ کے پروجیکٹ میں قرض الحسنہ اسکیم میں بھی معاونت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی حجت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اشہد ان امیر المؤمنین واولاده المعصومین حجج اللہ علیہ الصلاۃ والسلام حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
صلی اللہ علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن جميع أعداء محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله